if you go to sillimanite zone, if you go to sillimanite zone, sillimanite zone, so what are the reactions? Kyanite converts to sillimanite. ये इसका रिएक्शन यही है, kyanite convert to sillimanite. What is the kyanite system? सिस्टम क्या है kyanite का? ट्राइक्लिनिक या ऑर्थोरोम्बिक? देखो थोड़ा, सब गैस मन है सब. kyanite is triclinic. kyanite क्या है? sillimanite, ऑर्थोरोम्बिक. sillimanite, अंडालुसाइड, ऑर्थोरोम्बिक. स्ट्रेट एक्सटेंशन दिखाता है. kyanite स्ट्रेट एक्सटेंशन दिखा भी सकता है प्रॉपर सेक्शन में, इन सम सेक्शन, और ट्राइक्लिनिक. ठीक है ना? दो देयर सिस्टम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट बट कंपोजिशन इज सेम ना. इसको क्या बोलते हैं? देयर पॉलीमॉर्फस और डाइमॉर्फस ही बोलते हैं ना. पॉलीमॉर्फस. सो kyanite only compositional is same, only it changes its structure. Only changes the structure. Changes the structure. मेरे बात समझा कि नहीं समझा? तो आप इसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड में ये होता है, ये आपको बोलता हूँ. 690, ये 690 डिग्री सेंटीग्रेड में ये. तो ये कहाँ आएगा? समवेयर हियर. हाँ, मैं आपको सिलिमिनाइट ना ऐसे 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 लिख दो आप. kyanite टू सिलिमिनाइट, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करो. सो फ्रॉम 690 और 700 से सिलिमिनाइट जोन चालू हो गया. ओके, नाउ देयर इज वन मोर रिएक्शन, यू नो, which is very important for you. That is Moscovite plus quartz. This produces potash feldspar plus sillimanite plus water, or you can say melt this reaction. Understood ना? So this reaction takes place at 790 degrees. आप देखो, this is 790. So what it says, this conversion is sillimanite zone, but this reaction, you know, this indicates granulite phases. This indicates granulite phases. ये आपका amphibolite phases में गया है या upper amphibolite phases में गया. But this reaction, where does it take place? I'll just write down ना. ऐसे और थोड़ा इधर ले लो. बहुत 790 ना 800 almost ना. Muscovite plus quartz, potash feldspar, sillimanite plus melt, water. $790. So this is the beginning of granulite phases. Beginning of granulite phases. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? आप देखो, in this reaction, एक मिनट. What it says, मेरा बात समझा कि नहीं समझा? Now this melting reaction, you know,
आप देखो एक चीज बताओ, यह सपोज रॉक एक था, दिस इज योर ग्रानुलाइट फेसिस, ग्रानुलाइट फेसिस। तो यहाँ क्या होता है, मॉस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज, दिस गिव्स राइज टू पोटाश फेल्डस्पार, सिल्लिमाइट प्लस मेल्ट, ये हुआ ना। Now this melt is rich in water, rich in water. मेरा बात समझा? तो मेल्ट कैसे बने? Unless water is there, rock will not melt. Now, since water is there, you cannot increase the temperature further. Increase the temperature further. ये मेल्ट प्रोड्यूस हो गया, मेल्ट का अंदर वाटर आ गया। तो even if the boreal is going on, but the temperature will not increase unless you remove this water, you remove this water from the system. क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर कभी बढ़ता है क्या 100 से? नहीं बढ़ेगा ना, unless everything is vaporized. फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, बट वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना। इसलिए इफ इट इज the rock is saturated with water and melt is being generated. अभी तक मेल्ट नहीं था, विनसिस्ट फेसिस, एम्फिबोलाइट फेसिस एंड दिस अपर एम्फिबोलाइट फेसिस, मेल्ट अभी भी क्रिएट हो रहा है। पहले से तो मेल्ट नहीं था ना, इसलिए आप टेम्परेचर बढ़ा सकते थे, बट अभी इतना मेल्ट प्रोड्यूस होगा रॉक में, the temperature will not increase unless you remove this water from the system. So follow this point ना. So यहाँ क्या होता है, how to remove the water from the system? By there is a mechanism called carbon dioxide metasomatism. Metasomatism. Understood ना? अभी if there is lot of carbon dioxide in the comes from the below, from mantle, the carbon dioxide streaming takes place. Streaming इसको बोलते हैं, carbon dioxide infiltration takes place from mantle. क्योंकि आप तो ऑलरेडी 30 किलोमीटर चले गए, 30 किलोमीटर चले गए नीचे, तो from deeper mantle or from the mantle this carbon dioxide comes up. When this carbon dioxide comes off, this melt or the water is melt is removed. वो remove होगा and rock will become dehydrated. निकल गया, मेल्ट निकल गया वहां से, उसको पुश कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, मैं रहूंगा इधर। वाटर रिच सिस्टम हैज टू गो आउट। जितना मेल्ट बना था ना, उसका अंदर वाटर था, ये सबको पुश कर देगा। तेरा बात समझा कि नहीं समझा? सो दिस हैपेंस इन द ग्रानुलाइट फेसिस। अभी आपको ग्रानुलाइट फेसिस को और गर्म करना है, और हीट करना है, तो आप ये मेल्ट को रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आल्सो नेचर डज। नेचर उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, आके द मेल्ट को रिमूव कर देता है, तो रॉक बिकम्स ड्राई। सो ग्रानुलाइट बिकम्स ड्राई। You understood ना? Granulite becomes dry. Becomes dry. कि तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही आएगा, इतना डेप्थ हो जाएगा। उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मेटासोमाटिज्म। नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड उठता है। मेरा बात समझा ना? उसको वो वाटर को रिमूव करता है, मेल्ट को रिमूव कर देता है। वो जो मेल्ट है वो क्या मेल्ट है? क्वार्ट्ज फेल्डस्पार, यही तो है ना उसमें, यही तो थे। क्वार्ट्ज कहाँ गया? ये क्वार्ट्ज फेल्डस्पार सब उसका अंदर है ना, सिल्लिमाइट वही मेल्ट का अंदर होगा। वो सबको बाय फोर्सफुली इट विल रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड मेटासोमाटिज्म से। तो रॉक बिकम्स ड्राई, रॉक बिकम्स ड्राई और एनहाइड्रस यू कैन से, सॉरी डिहाइड्रेटेड। तो इसका बाद जो है ना फेनोमेना,
ये 700 डिग्री 790 का बाद जो फेनोमेना है, अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, अदरवाइज टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज, ओनली दिस रिमूवल इज देयर। फॉलो ना? तो अब ये सब एरिया में ये सब जगह में इधर टेम्परेचर और बढ़ेगा, 800, 900, 1000 तभी बढ़ पाएगा, तब वो डेवलप करेंगे कोडियराइट, हाइपरस्थीन, ये डेवलप करेंगे, और स्पिनेल, देन ओसमिलाइट, ये मिनरल्स दे आर वेरी हाई टेम्परेचर मिनरल्स, तब भी डेवलप करेंगे जब भी बिकम्स कोडियराइट लिखा ना। हाँ, तो जहां आपको कोडियराइट मिलेगा, स्पिनेल मिलेगा, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। वो मेल्ट को रिमूव किया है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उधर, अंबाज एरिया इज फुल ऑफ कोडियराइट, अंबाज एरिया इज फुल ऑफ स्पिनेल। तो क्या इंटरप्रिटेशन आपका? तो सुकुमार इस बार वो स्लाइड देखा ना, कोडियराइट वो स्पिनेल का, कोडियराइट, स्पिनेल, सिल्मेनाइट है, एक दो स्लाइड लंबे लंबे स्लाइड है, अंबाजी एरिया का है, वो देखा ना। तो उसमें ये सब चीजें आएंगी, ये एरिया का दैट इज अराउंड सम 800 डिग्री या अबव। बात समझा कि नहीं समझा? अभी ये जो एरिया हुआ, ये तो UHT आ गया, ये जोन क्या हुआ? ये ग्रानुलाइट फेसिस का, यहाँ तक ग्रानुलाइट फेसिस, ये अपर एम्फिबोलाइट का, आप समझते कि नहीं? ये UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ग्रानुलाइट, ये खाली ग्रानुलाइट, ये हो गया आपका अपर एम्फिबोलाइट। इसमें दिस इज ए जोन यू नो वेयर मेल्टिंग इज टेकिंग प्लेस। काइनाइट जोन में तो मेल्टिंग चालू हो गया इधर से, ये भी सिल्मेनाइट जोन में तो मेल्टिंग चालू हो गया। रॉक स्टार्टेड मेल्टिंग, प्रोड्यूसिंग क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एग्रीगेट्स। बात समझा कि नहीं समझा? रॉक नो लॉन्गर रिमेंड एज ए सेडिमेंटरी रॉक। रॉक तो पहले सेडिमेंटरी था, पेलिटिक सेडिमेंटरी बेडिंग्स वर देयर, सिस्टोसिटी, नाइसोसिटी सब थे यहाँ, बट अभी जो मेल्टिंग किया, ये क्वार्ट्ज फेल्डस्पार बैंड आ गया, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार, और एक बैंड आएगा, दिस इज आल्सो क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। ये कहाँ से आया सब? ये मेल्टिंग हो गया, तो रॉक मेल्ट हो गया, मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज मिस गए, मेल्ट निकाल दिया। समझा कि नहीं समझा? सो नाउ द रॉक इज ए बेंडेड रॉक। ये मेल्ट जो हो गया उसको क्या बोलेंगे? नियोसोम बोलेंगे। जो लेफ्ट आउट हो गया डार्क वाला पार्ट, वो लेलियोसोम, ल्यूकोसोम, पालियोसोम, एक क्या मेलानोसोम, सॉरी मेलानोसोम एक है डार्क बैंड, डार्क ना, और ये जो व्हाइट वाला ल्यूकोसोम। ल्यूकोसोम इज व्हाइट, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार होगा उसमें, और जो मेलानोसोम है वो डार्क, उसमें स्टोरोलाइट हो सकता है, गार्नेट हो सकता है, सिल्मेनाइट हो सकता है, कोडियराइट हो सकता है, स्पिनेल हो सकता है, वो डार्क बैंड है। डार्क बैंड में रहेगा क्या? कोडियराइट, स्पिनेल, बायोटाइट, गार्नेट, स्टोरोलाइट, यही मिनरल रहेंगे ना, सिलिकेट्स। और व्हाइट बैंड में क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। So white bands are called लिकोसोम, डार्क बैंड्स आर कॉल्ड मेलानोसोम। सो मेलानोसोम और लिकोसोम मिलके उसको बोलते हैं मिग्मेटाइट। ये रॉक इज ए मिग्मेटाइट, ये दोनों मिल गए मिग्मेटाइट। सो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेल्टिंग। अब पूरा मेल्ट कर देंगे तो पूरा ग्रेनाइट बन जाएगा।
पूरा मेल्ट कर देंगे, 100% मेल्टिंग हो गया तो ग्रेनाइट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हमें एस टाइप ग्रेनाइट। अभी नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा। ग्रेनाइट का थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ा क्या मैडम ने? नहीं बताया होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो आप अंबाजी में कैसे फील्ड करोगे। ये जो ग्रेनाइट निकलेगा ना, ये तो छोटे छोटे बॉडी ऑफ ग्रेनाइट, ये छोटे से मिल जाएंगे जो ये एस टाइप सेडिमेंटरी डिराइव्ड ग्रेनाइट। एस मतलब सेडिमेंटरी से आया है मेल्टिंग बन के। ये पार्शियल मेल्टिंग हुआ, वो फुल मेल्टिंग हो गया। दिस इज ए पार्शियली मेल्टिंग, पार्शियल मेल्टिंग हो गया, वो फुल मेल्टिंग हो जाएगा तो ग्रेनाइट बन जाएगा। पार्शियल मेल्टिंग को बोलते हैं एनाटैक्सिस। एनाटैक्सिस मेरा बात समझाना। डार्क बैंड में क्या होता है, व्हाइट बैंड में क्या होता है, उसको कुछ कुछ जगह में आप पढ़ेंगे, पैलियोसम पढ़ेंगे, पैलियोसम एंड न्यूसम पढ़ेंगे, कुछ कुछ किताब में लिखा होगा, मैं थोड़ा बोलता हूँ आपको। पैलियोसम एंड न्यूसम, अंडरस्टूड ना? न्यूसम तो ठीक है, जो नया निकला, न्यू मीन्स न्यू, दैट इज योर लिकोसम। बट जो पैलियोसम वर्ड है ना, पैलियोसम इंडिकेट्स जो पहले था उसको रिप्रेजेंट करता है। बट एक्चुअली क्या हो गया, ये जो व्हाइट बैंड निकला है ना मेल्टिंग होके, ये तो जो पहले था उससे तो निकला है। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? पेरेंट रॉक जो पहले था, जिसका अंदर मेल्ट का कोई पोर्शन नहीं था, दैट इज द ओरिजिनल रॉक। वहीं से कुछ निकल गया ग्रेनाइटिक फ्रैगमेंट। तो दिस डार्कर फ्रैगमेंट्स ना, दिस मेलानोसम कैन नॉट रिप्रेजेंट ए पैलियोसम। पैलियोसम में जो ओरिजिनल जो था वहां से तो माइनस कर दिया ना आपको अल्फेड्सपर फ्रैगमेंट, तो इट इज नॉट पैलियोसम। दिस मेलानोसम इज नॉट ए पैलियोसम। पैलियोसम इज द ओरिजिनल रॉक। आपका पास कितना था कुछ कंपोजिशन ऑफ पैलिटिक रॉक, उसमें से कुछ मेल्ट कर दिया आपने। मेल्ट कहाँ से किया? ये पैलियोसम को मेल्ट करके किया ना, तो अभी जो लेफ्ट आउट हुआ दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल रॉक ना, वहां से कुछ निकल गया ना, इसलिए राइट टर्म होगा मेलानोसम। जस्ट डार्क कलर बैंड है, उसको पैलियोसम नहीं बोलेंगे। बट सम हियर यू विल सी दैट देयर इज मेंशन ऑफ पैलियोसम वर्ड, बट इट इज लिटिल रॉन्ग। मेरा बात समझाना, व्हाई इट इज नॉट पैलियोसम? ये पैलियोसम इज द ओरिजिनल रॉक, दैट इज ए डार्कर रॉक, डेफिनेटली डार्कर रॉक, बट ना उससे निकल गया कुछ मटेरियल मेल्ट होके। सो पैलियोसम माइनस दिस लिकोसम, then this melanosome, that will also appear dark. So यही डिफरेंस है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आई विल गिव यू सम हाई UHT reactions and some discussion about the migmatites you will do. That is most important. Migmatite आप तो इस पर अंबाज में खाली migmatite देखते रहेंगे आप, उसमें क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, we will discuss in the next class. So today we will stop, huh? Okay.